اقبال کے اس فلسفے کے تحت میں یہ آپ سے سوال کرنے آئی ہوں کہ جس اقبال کا نظریہ لے کے تحریک ہماری انصاف جو ہے پاکستان تحریک انصاف وہ معرض وجود میں آئی اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم پاکستان کے نظام کو بدلیں گے، ہم پاکستان کے اندر لوٹ گھسوٹ چوری رہزنی دو نمبری کا راستہ روکیں گے اور ہم پاکستان کے اندر وہ ریفارمز لائیں گے جو رول آف لا سے جڑی ہوں، جو میرٹ کی عکاسی کرتی ہوں، جہاں پہ مائٹ از رائٹ کی بجائے ادارے مضبوط ہوں۔ آج کیا وہ اقبال کے نظریات، وہ فکر، وہ سوچ جس کے تحت ہم سیاست کا یہ سفر شروع کر کے اس علاقے کے اندر آئے تھے، کیا ہم وہ اچیو کر پائے؟ آنسر از نو، کیونکہ یہ پریس کانفرنس جس مقصد کے لیے کی جا رہی ہے کہ ایک ہمارا رہبر جس کے ساتھ میں چٹان بن کے کھڑی رہی، جس کے بیانیے کو سیاسی مورچے پہ سب سے زیادہ اس کا دفاع میں کرتی رہی، سیاسی مخالفین کو سب سے زیادہ میں للکارتی رہی، سیاسی مخالفین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اپنے لیڈر کے بیانیے کا دفاع کرتے کرتے میں یہ بھول گئی تھی کہ میں جس کو رہبر بنا کے پاکستان کی تقدیر بدلنے کا، پاکستان کی سوچ بدلنے کا، پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کا جو خواب آنکھوں میں سجا کے اس میں شامل ہوئی تھی، وہ راہبر جو ہے اس کے گھر میں راہزن بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے گھر کے اندر جو راہزنی ہو رہی تھی، خاتون اول، اس کی سہیلی فرح گوگی، خاتون اول کا خاندان، خاتون اول کے ساتھ جڑے جتنے کردار تھے، وہ جس طرح سے مال مسروقہ پہ ہاتھ صاف کر رہے تھے، قومی خزانہ دن بدن خالی ہو رہا تھا، لیکن مانیکا فیملی، فرح گوگی کا خاندان، ان کے خزانے بھر رہے تھے۔ آج جو ہوش ربا انکشافات اور کرپشن کی عجب کہانی اور غضب کہانی میڈیا کی سکرینوں پہ چلی ہے، جس کے تحت ایک ایسی خاتون جس کا استحقاق کوئی نہیں تھا، نہ وہ ایم این اے تھی، نہ ایم پی اے تھی، نہ پارٹی کے اندر کوئی عہدیدار تھی، لیکن اس کی رسائی جو تھی وہ وزیر اعظم ہاؤس اور وزیر اعلیٰ ہاؤس تک اتنی آسانی سے تھی کہ اس کو جب چاہے وہ وزیر اعظم کے بیڈ روم تک جا کے خاتون اول کو وہ تمام مال اسباب فراہم کر سکتی تھی جو اس نے دن بھر جو ہے اکٹھا کیا ہوتا۔ ساتھیوں، یہ تکلیف دہ حقیقت ہے، لیکن یہ سچ ہے کہ ہم نے جس لیڈر کے ساتھ امیدیں لگائیں، فرح گوگی جیسے کرداروں نے نہ صرف اس جماعت کو بدنام کیا، بلکہ جو کمپنیاں، جو اکاؤنٹ جس طرح بیرونی اور اندرونی ملک جائیدادوں کا ایک تفصیلی ایک بوریوں میں ڈالیں اگر آپ ان تفصیلات کو، تو وہ بوریاں کم پڑ جائیں گی۔ میں نے آپ کے واٹس ایپ گروپ میں وہ شیئر کی ہیں کہ کتنی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں وہ یہ نہیں کہ ڈھکے چھپے، یہ ریکارڈ جو آپ کو دیا گیا ہے، یہ ہماری سیکیورٹی ایکسچینج کمیٹی یا کمیشن جو ہے، جو فیڈرل سطح پہ ہر کوئی اپنے آپ کو انلسٹ کرتا ہے، رجسٹر کرتا ہے، یہ اس کی دی ہوئی کمپنی ہے جو مصوفہ نے خود جا کے رجسٹر کرائی ہیں، یہ کوئی بے نامی نہیں ہے۔ ان کمپنیوں کے اندر جو اثاثوں کا اضافہ ہوا ہے، ان سینکڑوں اکاؤنٹس کے اندر جس طرح آپ کے اربوں روپے ان اکاؤنٹس کے اندر آئے، اور 3 سالوں کے اندر جس طرح آسمان کی بلندیوں پہ ان کے اثاثے چلے گئے، پاکستان نیچے جا رہا تھا۔ ہمارے چیئرمین پی ٹی آئی کی ٹیم، ان کی لیڈرشپ میں ان کے جو فرسٹ لیڈی کا خاندان اور دوست احباب، ان کے اثاثے آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے تھے۔ تو لہٰذا یہ ہمارے جو معصوم ذہن ہے، میرا دل جو ہے یہ بات اور یہ حقیقت ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ میرا لیڈر جو ہے، جس کو میں لیڈر مانتی تھی، وہ
किसी जगह डाका जनी, डकैती और इस कौमी ख़जाने के साथ होने वाले हेर फेर का ज़िम्मेदार हो सकता है। लेकिन जूँ जूँ हकीकतें अया होती गई, जूँ जूँ हमारे सामने वो तमाम हक़ाइक़ आते गए, हमें ये यकीन करने में मुश्किल ना हुई कि रहबर को रहज़न बनाने में जो किरदार थे वो आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब हो रहे हैं। मैं आज के इस प्लेटफार्म से उन ज़िम्मेदारान को ये कहना चाहती हूँ कि ये इंकशाफात इस कौम को आपने हैरानो शश्तर करके इन इंकशाफात के ज़रिए ये मायूसियों का शिकार ये जो कौम है उसको और ज़्यादा दिलज़ारी कर दी। लेकिन इनको सुकून और ठंडक उस वक्त पड़नी है जब ये किरदार जो हैं वो गिरफ़्तार हों, जेल की सलाखों के पीछे जाएं और इनसे ये माले मसरूका बरामद हो। ये सारा कौम का लूटा हुआ पैसा मेरे बच्चों की तालीम पे खर्च हो। ये पैसा, ये सरमाया, ये सासे जो हैं इनकी नीलामी करके मेरी देहात के अंदर मरने वाली बहनें बेटियां जो आज भी ज़चगी के दौरान मरती हैं, मेरा वो बच्चा जो बिलक बिलक पे दवाई ना मिलने की वजह से आज मर रहा है, ये सरमाया उस पे लगाया जाए और ये किरदार जो है वो कौम के सामने ला के इनको कानूनी और आइनी अदालत में फिलफौर सज़ा दी जाए। आखिर में चूँकि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है आज 9 नवंबर को इकबाल के उस नज़रिए के साथ इज़हार यकजहती करते हुए शहीन का जो निशान मैदान में लेके आई है, उस शहीन की परवाज़ के साथ जुड़ा जो हमारा अज़म है, उसमें हम उन नौजवानों को ये कहना चाहते हैं कि जो क़याम पाकिस्तान के वक्त नौजवानों ने शहीन बन के उस ख्वाब की तबीर दी थी और पाकिस्तान बना था, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उस वक्त नामुमकिन को मुमकिन बनाया अपने नौजवान शहीनों की ताकत से। इंशाअल्लाह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी आज शहीन के निशान के साथ इस पाकिस्तान को मुस्तहकम बनाने में हरावल दस्ते का किरदार अदा करने जा रही है और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि ये मुल्क जो है वो गिद्धों से, रहज़नों से, आपकी वो आपके अवाम के गिद्ध बन के नोचने वाली जो किरदार थे उनसे निकल के एक यकजा कौम, एक इंतशार का शिकार जो कौम है उसको एक यकजा कौम बना के इस्तेकाम पाकिस्तान की तरफ हम रवां दवा होंगे। आपका मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। कोई सवालात हैं तो आपको बारी बारी मैडम ऐसा है कि बारी आमदा इलेक्शन में शाह साहब से शाह साहब से जी शाह जी आमदा इलेक्शन में रहबर शाह सैयद हूँ तो फिर रास्ते आसान हो जाते हैं। जी मैडम बहुत शुक्रिया। ऐसा है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो आमदा इलेक्शन में अकेले ही मैदान में जा रही है या कोई अलायंस भी बनाएगी या किसी के साथ अलायंस में, और सानवीस में ये है कि क्या मुस्लिम लीग नून के साथ भी आपका अलायंस बन सकता है? देखिए, सियासत के अंदर कोई चीज़ हरफ़े आखिर नहीं होती है। आज के हरीफ कल के हलीफ और कल के हलीफ आज के हरीफ हो सकते हैं। जो इलेक्शन के शेड्यूल के ऐलान के बाद सफ़बंदी होगी उसके बाद ये तयन होगा कि हम किस जमात के साथ किस तरह से गिव एंड टेक करके सियासी अमल के अंदर निकलेंगे। जहाँ तक हमारा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के मौजूदा आज के दिन तक के बयानिए का ताल्लुक है तो हम इस बात पे कन्विंस्ड हैं कि हमें अपने ज़ोर बाजू को आजमाना है। शहीन जो है वो करगस के जहान में एडजस्ट ही नहीं हो सकता। अगर शहीन को अपनी परवाज़ करनी है तो फिर हमें दो पर जो शहीन के जहांगीर तरीन और अलीम खान है उनकी ज़ोर से उड़ना होगा और हमें दूसरों के बाजू और बैसाखियों पे इन्हिसार करने की बजाय इन दो परों से शहीन की परवाज़ को बुलंद करना है। और आवाम जो है वो जो सताए हुए हैं, बारियां लगा के मरूसी सियासत और नस्ल दर नस्ल जो वो सियासी जमातें अपने घर में ही हर चीज़ करती रही हैं, उनके मुतासरीन जो है वो नई जमात की तरफ देख रहे हैं। और आज IPP का यहाँ कट जो है वो इस बात की गमाजी करता है कि शहीन की परवाज़ जो है वो
जीत की परवाज में बदलने जा रही है। मलिक तैमूर को भी दावत देंगी ना? जी 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 जी। नून लीग की बी टीम कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पे अक्सर तनकीद हो रही है। ये बताएं कि अगर आप इलेक्शन में जा रहे हैं तो आपका जितना बयानिया, जितने आपके कायदीन की तकरीरें हैं, वो तो इमरान खान के अगेंस्ट हैं, मियां नवाज शरीफ के खिलाफ तो आप बात ही नहीं कर रहे। तो क्या पॉलिसी है कि एंटी नवाज शरीफ इलेक्शन में जाएंगे या एंटी इमरान खान? देखिए, हमारा बयानिया जो है वो अवाम के दिलों के साथ जुड़ा, दस्तक देता वो बयानिया है जिसके तहत जो है वो हम अवाम के दुखों का मुदावा और मरहम लेके आए हैं। दुख देने वाले और मरहम लगाने वाले साथ साथ नहीं चल सकते। ये हमने तय करना है कि मरहम और ज़ख़म एक ही हाथ से नहीं लग सकते। ये मरहम लगाने वाले हाथ और ज़ख़म लगाने वाले हाथ एक जगह हो नहीं सकते। आपको ज़्यादा ज़ख़म किसने दिया, नवाज शरीफ ने या इमरान खान? देखिए, जो 3 दफ़ा इक़्तिदार के सिंहासन पे आए, 7 दफ़ा पंजाब के वज़ीर आला के तौर पे उन्होंने इक़्तिदार के मज़े लूटे, लेकिन ये पाकिस्तान ना बदल सका। हम लोग, मुझ समेत बहुत सारे और, हमने उन दोनों जमातियों को जो बारियां लगाने वाली थी उनसे ऐलान बगावत करके हम पीटीआई में आए थे। हम पीटीआई के प्लेटफार्म से इस पाकिस्तान को बदलना चाहते थे, हम इस निज़ाम को बदलना चाहते थे। हमारे वो ख्वाब जो थे उनको ताबीर ना मिल सकी। हाँ, अलबत्ता हमें फराह गोगी और बुशरा बीबी जैसे किरदार ज़रूर मिले पीटीआई में, और हमें ये देखना है कि हमारी मंजिल जो है वही पाकिस्तान है जिसका ख्वाब इमरान खान ने दिखाया था। वो अधूरा ख्वाब जो है उसकी तबीर इंशाल्लाह हम आईपीपी के प्लेटफार्म से इस कौम को देंगे। सवाल आपसे ये है, मेरा सवाल आपसे ये है कि इलेक्शन वक्त आगे कौन शामिल हो रहा है इज्तिमा में, आगे टिकट कौन सी गिराने जा रहे हैं? दूसरा ये बताइएगा कि जेल में तो फवाद चौधरी साहब से भी कोई है बातचीत जारी है अभी कि नहीं? आपका मैं आया था जी, आप भी सवाल कर लें ताकि मैं एक ही दफ़ा फिर राना शहीद जी। कैपिटल टाइम से मेरा सवाल आपसे ये है, क्या वाकई इलेक्शन होंगे? अभी यकीन है क्या तमाम पार्टियां इसमें शामिल होंगी? देखिए, इलेक्शन का सायरन बज चुका है और इलेक्शन का बिगल बजने के बाद हर जमात जो है वो अपनी सियासी इनिंग्स जो है उसको शुरू कर रही है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वो वाहिद जमात थी जिस दिन ये नोटिफिकेशन हुआ, तारीख का ऐलान हुआ, सबसे पहला जलसा हाफजाबाद में उसी दिन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का था। लिहाजा हमें ये यकीन है कि इलेक्शन वक्त पे होंगे। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान को आगे लेके जाने, पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने, सियासी अफरा तफरी, गैर यकीनी सूरत हाल और इंतशार से निकलने का वाहिद जो कुंजी है वो इलेक्शन है, और इलेक्शन इस पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पे हमवार कर सकता है। जो बात आपने दूसरी की कि भाई हम अगली कौन कौन सी विकटें उड़ाने वाले चले गए, हम अपने साथियों के बाजू और ताकत बनाते हुए आईपीपी को मुस्तहकम बनाएंगे। हमारा ये यकीन भी है और कमिटमेंट भी है कि बहुत सारे लोग हमारे इलेक्टेबल्स राब्ते में हैं। हल्के की सियासत करने वाला देखता है कि हल्के के अंदर सियासत के दाव पेच क्या हैं। हम हल्का वाइज ये तय कर रहे हैं, हमारी एक कमेटी बनी है जो तयन कर रही है कि किस हल्के के अंदर हमारा कैंडिडेट जो है वो कहाँ खड़ा है। उसके हिसाब से हमें फिर अगर कोई बेहतर और उससे आगे जीतने वाला हमारी टीम में आएगा तो हमें खुशी होगी कि हम वो सीट निकालें। ज़्यादा से ज़्यादा सीटें निकालना हमारा टारगेट है। जीतेंगे तो हम इस्तेकाम पाकिस्तान के मंशूर पे अमल करेंगे, और जीतने के लिए एक जीतने वाला कैंडिडेट होना बहुत ज़रूरी है, और उसी की तरफ हमारा फोकस है। और यहाँ 2 सीटें एमएनए की और इंशाल्लाह 4 सीटें एमपीए की इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अपनी जेब में डाल के जा रही है। मलिक तैमूर को मैम दावत देंगे आप? जी, मलिक तैमूर को दावत देंगे? हाउस में जी। फराह गोगी या बुशरा बीबी की शिकायत पहुंच पाती तो उस वक्त के वज़ीर आज़म हाउस में देखिए, जिसने जाके फराह गोगी की स्याहकारियाँ और स्याह अमल पे जिक्र किया, तस्करा किया, वो उस वक्त के डीजी आई हों या मैं हूँ या आमर कियानी, जहांगीर तरीन हो या अलीम खान हो,
कोई भी शख्स जो है वो चेयरमैन पीटीआई के गैज़ और गज़ब से नहीं बच सका। आप लोगों ने मीडिया की आंख ने देखा कि फराह गोगी की करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मेरे प्यारे चेयरमैन पीटीआई को आके डिफेंड करना पड़ा। उन्होंने मीडिया में आके खुद उसकी करप्शन के ऊपर पर्दा डालने के लिए अपनी ज़ात को पेश कर दिया। तो सादिक और अमीन जब गंदगी के अंदर पत्थर फेंक के उस गंदगी से बचने की कोशिश करेंगे तो उनके दामन पे वो चींटे ज़रूर आएंगे और वो आगे। बहुत शुक्रिया जी। मैडम लास्ट क्वेश्चन, करप्शन पर पर्दा डालने वाले इमरान खान को क्या आप करप्ट कहेंगी? उस्मान साहब सवाल ले लें। जी उस्मान साहब, जी आप भी बोलें। शामिल हुए, ये एक हैवी वेट है, इसमें तो कोई शक नहीं है। वो अकेले नहीं आ रहे, जो साबिक एमएनए है, साबिक एमपी है। एक बात है, इलेक्शन में हर पार्टी के पास जो इलेक्शन में आएगी उसके पास कुछ ना कुछ बयानियाँ है, उसके पास कुछ ना कुछ मंशूर है। किसी ने मोटरवेज दी हुई है, किसी ने सेहत कार्ड दिया हुआ है। आपके पास कि आप क्या मंशूर लेके आ रहे हैं, क्या बयानियाँ लेके आ रहे हैं? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है आपका, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल। पहली हुकूमतों के साथ भी शामिल थे। मेरा सवाल, आपके पास ऐसा क्या आइडिया आ गया कि वो सारे दाग धुल जाएंगे और आप आ गया? और इसमें अक्सरियत जो है ना मैडम, वो 3.5 साल तक जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में ठीक है। वही लोग यहाँ मौजूद हैं, बहुत वही विक्टिम जो है वही कोई रह तो नहीं गया, वो भी दसो। साथ ही मैडम ये भी बताइएगा। और मैडम नहीं अभी तक ये नहीं। चलो और मैडम एक चलो और जी, बस जी हुण मेरी वारी है। मैडम एक सारे अपने सवाल, मेरी बारी नहीं मैडम इसमें शामिल करें, जी फवाद चौधरी को शामिल करें कि उसके साथ भी कोई राबित हो रहे हैं। वो विकेट भी कब आ रही है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कब बस कर रहे हैं? गल है जी। क्या इमरान खान पे काफी साबित हुई कोई? अच्छा जी, मेरा ख्याल है कि जितने सवाल मेरे भाइयों ने किए हैं, आप सारे मुहिब वतन हैं, आप इस मुल्क के लिए दर्द रखते हैं, आप तड़प रहे हैं कि ये मुल्क कैसे ठीक होगा। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि इन सारे सवालों का जवाब एक ही है कि आपने इस मुल्क को बदलना है, इस निज़ाम को बदलना है, इस क़यादत को बदलना है, तो सबसे पहले अपने आप को बदलना है। जब तक आप नहीं बदलेंगे, ना ये निज़ाम बदलेगा, ना ये मुल्क बदलेगा। आपने अपने आप को बदलने के लिए जो आपके कान, आँखें और ज़बान या वो सुनते हैं, कहते हैं या आप देखते हैं, वो सारी चीज़ों को सामने रखते हुए हकीकत से आंखें नहीं चुरा सकते आप। मेरा दिल हो सकता है इस चीज़ को मानने के लिए इनकारी हो, जो आप कह रहे हैं कि भाई फलां बंदा इस मुल्क को ये तय कर ले कि सुपर शख्सियत अब नहीं बचा सकती। इस मुल्क को बचाना है तो सुपर सिस्टम चाहिए। सुपर सिस्टम जो है, ये सुपर शख्सियात जितनी थी, आप सब उनके फैन क्लब हैं, फैन है, सेलिब्रिटीज के फैन होते हैं। फैन जो होता है वो फैन क्लब के साथ जुड़ा रहता है और वो ये समझता है कि उसका हीरो जो है वो फाउल प्ले नहीं कर सकता। जो भी दुनिया के अंदर जितने खेल हैं, उनका खेलने का एक असूल है। कोई जितना मर्जी नामवर खिलाड़ी क्यों ना हो, क्या मैसी या रोनाल्डो को ये इजाज़त है कि वो फाउल करे तो वहाँ रेफरी उसको रेड कार्ड ना दिखाए और ग्राउंड से बाहर ना भेजे, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर और इसका फैन क्लब बहुत ज़्यादा है, इसको ग्राउंड में रह के खेलना चाहिए। कोई खिलाड़ी सियासत के खेल के अंदर भी अगर फाउल प्ले करेगा तो वो रेड कार्ड दिखा के ग्राउंड से बाहर जाएगा, जब तक वो अपनी उस सजा को नहीं भुगतता, वो इमरान खान हो या कोई भी हो। बहुत शुक्रिया।